Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. This is your physics teacher Najia Kasmi. Student, today we are going to discuss the chapter number 2, that is measurement. Dear student, a simple definition of physics is the science of measurement. The science of measurement. That's why student, your first chapter is introduction and the second chapter is measurement. So student, why is measurement important in physics? Measurement is important in physics because it enables us to use mathematics in argument. Dear student, it is also important because numbers are usually the most convenient. A student, measurement is the common practice of everyday life. This routine work starts from morning till late hours in the night. Suppose student, if one goes to a shop to purchase sugar, the shopkeeper will weigh the required amount of sugar by his common balance and will hand over it to purchaser. For example, to purchase cloth, one goes to the shop and the shopkeeper will measure the required length of cloth by his meter scale graduated in centimeters. Suppose you want to measure a piece of paper, definitely you use your scale to measure the piece of paper. There are many examples, student. So come to the definition of measurement, student. Measurement is the determination of the size or magnitude of something by comparing that unknown quantity with some standard quantity. It's mean that measurement means the comparison of an unknown quantity with a standard. Why we compare to unknown quantity with a standard? To see how many times it is big or small as compared to the standard. Dear student, scientists have divided all physical quantities into two groups. Number one, fundamental quantities. Fundamental quantities are independent and do not depend upon the other quantities of their measurement. यानी वो क्वांटिटीज जिनके लिए किसी और क्वांटिटीज की ज़रूरत नहीं होती हमें, वो फिक्स्ड हैं. And the fundamental quantities are three. Main fundamental quantities are time, length and mass. There are, student, remember this, there are 7 fundamental quantities जो हम आगे पढ़ेंगे. But the 3 main fundamental quantities are time, length and mass. For example, mass is a fundamental physical quantity and the unit of mass is kilogram. Length is a fundamental quantity and then the unit of length is meter. Time is the fundamental quantity and the unit of time is second. ये हम और आगे पढ़ेंगे. Now come to the derived quantities. Student, derived quantity depend upon other fundamental quantities for their measurement. किस पे डिपेंड करती हैं ड्राइव क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं.
किस लिए? इनकी मेजरमेंट के लिए। इनकी एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। उससे पहले हम ज़रा यूनिट्स को पढ़ लें, क्योंकि जब मैंने बताया यहाँ पे किलोग्राम, तो ये यूनिट्स है, तो यूनिट्स क्या होती हैं? द स्टैंडर्ड measure of each kind of physical quantity is called unit। अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर यूज करेंगे, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड है। इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं लेंथ के लिए, जैसे किलोमीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर सीजीएस में छोटी यूनिट है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जब आप किसी मास को लेने जाते हो तो आप किलोग्राम कहते हो। जैसे जब मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप कोई शॉप के कोई परचेज़र शुगर लेने के लिए जाएगा तो वो कहेगा मुझे 3 kg शुगर चाहिए, वो 3 के साथ kg लगा रहा है, 3 kg। क्या 3 kg लेना चाह रहा है वो? सपोज वो शुगर लेना चाह रहा है तो उसे kg लगाया 3 के साथ, मीटर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि kg मास की यूनिट है, यानी ये एक स्टैंडर्ड मेजर यूनिट है जो बता रही है किसी फिजिकल क्वांटिटी को। यानी जब आप किलोग्राम की अगर बात करते हैं, जब कहीं पे किलोग्राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। कहीं अगर मीटर लिखा हुआ है तो हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? लेंथ की बात कर रहे हैं। और अगर कहीं पे सेकंड है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स क्या है? द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ईच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा भी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल रेशो मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। यानी मैंने क्या लिखा? 3 kg शुगर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर अ पीस ऑफ पेपर, राइट, 3 सेकेंड टू रीच द डिस्टेंस एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे हमें, अगर आप डेली लाइफ में देखें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट, come to the some system of units। system of units 1960s में पेरिस में एक मीटिंग हुई। और क्यों हुई? क्योंकि उस मीटिंग से पहले तक बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किए जाते थे, जिनमें जो 2 बेस सिस्टम थे, इंपॉर्टेंट सिस्टम थे, वो थे सीजीएस और एफपीएस। व्हाट इज द मीन ऑफ सी? सी मीन्स सेंटीमीटर, C means centimeter, G means gram, S means second। तो हम ये देख रहे हैं, ऊपर मैंने लिखा हुआ है सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ, इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो पहला सिस्टम था ये CGS। दूसरा सिस्टम कौन सा? FPS। लेंथ ऑफ यूनिट इज फुट। FPS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर नहीं बल्कि क्या यूज़ करते थे? फुट। मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड ही था। थर्ड क्या है आपके पास? MKS। लेंथ के लिए यूज़ करते हैं मीटर, मास के लिए यूज़ करते हैं किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। और यहाँ आप देख रहे हैं SI। क्या देख रहे हैं आप लोग? SI। SI किसका एब्रिविएशन है? SI है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है आपके पास? स्टूडेंट, देयर in this system 7 quantities have been accepted as fundamental quantities। किसमें? SI में।
ठीक है। एसआई में क्या है, 7 जो है फिजिकल क्वांटिटीज, उनको कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो क्या है, वो ये है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मीटर, एसआई यूनिट है। सिंबल क्या है, एम फॉर मीटर। सेकंड इज मास, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, सिंबल क्या है, किलोग्राम का केजी। टाइम की सेकंड, और एस इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पियर ए, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल मोल, इंटेंसिटी कैंडेला, और कैंडेला को किससे डिनोट किया है, CD से डिनोट किया है। These are the 7 fundamental quantities with their SI units. System International। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो एम केस लिखा हुआ है, एम केस में भी तो यही है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो एक्चुअली ये जो एम केस है वो किससे है, एसआई से ही है। मैंने कहा था ना अभी कि 3 हम जो है बेसिक लेंगे, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, लेकिन होते 7 हैं, तो वो यही मैं बता रही थी आपको। नाउ स्टूडेंट, come to the difference between fundamental quantities and derived quantities. All physical quantity of mechanics are fundamental quantities. For example, length, mass and time. देखिए बार बार हम यूज कर रहे हैं लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, जिसको आपने एमकेएस भी कहा है और इसी को आपने एसआई भी कहा है। एंड derived quantities, these are the quantities which can be expressed in term of fundamental quantities. ये वो quantities होंगी जो fundamental से निकलेंगी, वो quantities जो fundamental से हम बनाएंगे इसको, उस 7 fundamental को यूज़ करेंगे। For example, speed, volume, acceleration, force, pressure, work, charge, बहुत सारे। ये जब जैसे हम फिजिक्स चैप्टर पढ़ते आएंगे हमारे पास ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी। Now student, come to the difference between fundamental units and derived units. जब quantities कहेंगे तो quantities की बात आएगी, जब units कहेंगे तो units की बात आएगी। The unit used to express the fundamental quantities. For example, length पढ़ा था हमने, length के लिए किलोग्राम यूनिट यूज़ करेंगे, सॉरी लेंथ के लिए मीटर यूज़ करेंगे, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए क्या यूज़ करेंगे, सेकंड यूज़ करेंगे। ये यूनिट हो गई। और ड्राइव क्या है, द यूनिट्स विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जो फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होंगी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स कैसे बनेंगी। जैसे ड्राइव, जब फिजिकल क्वांटिटी कहा उसमें लिखा हुआ था स्पीड, क्या था स्टूडेंट, स्पीड, जो हम अभी चैप्टर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ये हो गई डिस्टेंस से, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस क्या है आपके पास स्टूडेंट, लेंथ है, और टाइम, ये दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इन दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या बना आपके पास, स्पीड बना। स्टूडेंट याद रखिए, लेंथ के लिए, लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ की मीटर है, तो इसका मतलब है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डेप्थ, ब्रेथ, एक्सटेंशन, ये सारी लेंथ की डिफरेंट आपके पास नेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी एक क्या है आपके पास, लेंथ अनदर वर्ड्स ऑफ लेंथ है ये। तो ये फिजिकल ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट क्या बनेगी स्पीड की, जो इन्होंने लिखा है स्पीड की यूनिट, यहाँ पे स्पीड की यूनिट लिख रहे हैं ये लोग मीटर पर सेकंड, कैसे बनी। लेंथ की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये बन गई हमारे पास ड्राइव यूनिट।
ये क्या बन गई हमारे पास स्टूडेंट, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी और ये ड्राइव फिजिकल यूनिट। इसी तरह आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपको ये एक्सेलरेशन और फोर्स और प्रेशर सब आपको समझ में आता जाएगा कि ड्राइव कैसे हुई है। वॉल्यूम के बारे में तो आपको पता है, वॉल्यूम तो बहुत आसान है, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम यू ऑलवेज यूज 3 लेंथ। अगर आपको किसी भी चीज़ की वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है तो आपको 3 लेंथ चाहिए होती है उसके लिए। एरिया फाइंड आउट करना है तो 2 लेंथ चाहिए होती है। ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो स्टूडेंट हम आगे इसको जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते आएंगे फंडामेंटल और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स को पढ़ते चले आएंगे। और यहाँ पे मैंने जिस तरह आपको ये टेबल बताया है 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विद दियर यूनिट्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग को जो है याद होना चाहिए कि 7 फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट के साथ क्या होती हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी, ये यही रहेंगी। Now come to the another table. This is the table for some drive quantities. अब देखिए ड्राइव क्वांटिटीज में क्या लिखा हुआ है, स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, वर्क, चार्ज। ये तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते चले आएंगे आप आराम से टेबल अपना बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो फंडामेंटल या बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनके यूनिट्स के साथ वो 7 हैं और ये 7 ही रहेंगी, ये आपने याद करनी है। ठीक है। सो स्टूडेंट होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।